Hello students, this is your Ashok sir and I welcome you all in the YouTube channel Math with Ashok sir. Today in this lecture we are going to solve the NCERT exercise 2.3 of class 7th. In the first two lectures we have done 2.1, 2.2 and some other concepts of fraction. Today we are going to start NCERT exercise 2.3. Okay, so starting with the first question without wasting any time. The first question you have asked, find the value of the following. Find the value of the following. Okay. First question you have asked 1 upon 4 of, then some numbers here given A, B, C. You have to find out the 1 upon 4 of all these numbers. आपको 1 upon 4 find out करना है उन सब का. ठीक है. क्या क्या दिया हुआ है? देखो सबसे पहले 1 upon 4, फिर 3 upon 5, फिर 4 upon 3. चलिए. सबसे पहला पार्ट ए वाला पार्ट है, आपको 1 upon 4 ऑफ फाइंड आउट करना है 1 upon 4 का. तो आप करोगे 1 upon 4 of 1 upon 4. Of means I have explained to you earlier. Of means multiplication. It means 1 upon 4 into 1 upon 4. It will give you 1 upon 16. It means 1 upon 4 of 1 upon 4 is 1 upon 16. Now second part, we have asked 1 upon 4 of 3 upon 5. So you will write 1 upon 4 of 3 upon 5. So when you will solve it, it will give you 1 upon 4 of means multiplication over 5. It means 3 over 5 4 are 20. Got it? Next part you asked 1 upon 4 of 4 upon 3. See 1 upon 4 of 4 over 3. When you will solve it, of means multiplication 1 over 4 multiply 4 over 3. Now you can see here I have the 4 in the numerator and here I have 4 in the denominator and both are in the multiplication. So 4 can cancel 4 and I will get completely 1 over 3. Clear my dear? So this is your first part of the question. If you look at the second part of the question, you have asked 1 upon 7 of. You have asked in the first part of the second question. This is question number 1. First part we have done. Second part I am going to do. You have asked 1 upon 7 of. 1 upon 7 of. So 1 upon 7 of which, what? 1 upon 7 of 2 upon 9. First part 1 upon 7 of 2 upon 9. When you will solve it, of means multiplication. So 1 upon 7 multiplied by 2 over 9. It means 2. देखो multiplication कैसे करते हैं? Numerator multiplied by numerator and denominator multiplied gets denominator. So 9 7 are 63. Any problem in it? No sir. Second part. You have asked 1 upon 7 of 6 upon 5. So 1 upon 7 of 6 over 5. When you will solve it, it gives you 1 upon 7 into 6 over 5. 6 1 are 6 and 7 5 are 35. Clear? C part 1 upon 7 of 3 upon 10. 1 upon 7 of 3 upon 10. 1 upon 7 of 3 upon 10. When you will solve it, it gives you 1 upon 7 of means multiplication 3 over 10. And how to multiply the fractions? Numerator multiplied by numerator and denominator gets multiplied by denominator. So 3 upon 70 is your answer. Got it? So what is the basic concept of this question? You should know the meaning of. Okay? What does the meaning of in this mathematical calculations? So of means basically multiplication and nothing else. So you have to multiply 1 upon 4 by the 1 upon 4, 1 upon 4 by the 3 upon 5, 1 upon 4 by the 4 upon 3. And in the same way 1 upon 7 of 2 upon 9 means you have to multiply 1 upon 7 by 2 upon 9, 1 upon 7 by 6 upon 5. Is this clear to you all? The basic concept which you have to keep in your mind is of. Of means multiplication. Got it? Now going to the second question, you have asked multiply and reduce to the lowest form if possible. You have asked, you are given some questions, you have to do multiplication there with these questions. And secondly, you have asked reduce them in the simplest form if possible. So reduce them in the simplest form means I have explained to you to convert into the simplest form. First of all, we calculate the SCF of numerator and denominator, and then we divide the numerator and denominator by the SCF. आपको क्या करना होता है? उनका SCF फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद SCF को SCF से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. Got it? तो सेकंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट.
ठीक है, दिस वन यू हैव कॉपीड आई थिंक. द सेकंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. These are multiplication. The first part 2 over 3 multiply by 2 whole 2 upon 3. Multiply by 2 whole 2 upon 3. So firstly it is in the mixed fraction form. I have to convert into the improper fraction, and to convert in improper fraction we multiply it by here and add it. Okay, so 3 to 6 plus 2 8 over 3. Okay, and when you will multiply it you get 8 to 16 over 9. Now it is improper fraction. Okay, it is improper fraction, so you cannot. Okay, ये आपकी क्या है, एक improper fraction है. और आप देखोगे improper fraction अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि 16 और 9 के फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना. मीन्स अगर आप 16 और 9 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही रहने वाला है. तो मैं क्या करता हूँ, जब सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगा तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको क्या करता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दूंगा. मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करूंगा तो 9 बन जाएगा 9, 7 डिवाइड बच जाएगा ओवर 9. कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने वो कैंसिल क्यों नहीं किया कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा था, 1 आ रहा था. आप देखो 16 और 9 का एचसीएफ आएगा 1 एचसीएफ होने की वजह से ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही रहेगी, इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता. गॉट इट? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. You are given 2 upon 7 and 7 upon 9. 2 upon 7 multiply by 7 upon 9. Now let's solve it. So you are seeing very clearly, एक में न्यूमरेटर में 7 है, एक में डिनोमिनेटर में 7 है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो 7 7 कैंसिल कर देगा. आपके पास आंसर आ रहा है 2 over 9. अब देखो 2 over 9 अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता. और अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता तो मैं देखता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में है. यस, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में आल्सो बिकॉज 2 and 9 का एचसीएफ कितना आता है 1. हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहते हैं, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आ जाता है 1. और अगर ये 1 नहीं आता है तो हम उसी एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, किसको, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी. ऐसा आएगा नहीं हमारे पास आगे. गॉट इट? थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड पार्ट ये गिवन 3 upon 8 and 6 upon 4. 3 upon 8 multiply by 6 over 4. Now see, when you are going to solve it, ये आपका है 3 upon 8 multiply 6 over 4. क्लियर? देखो क्या हो जाता है, 2 से कैंसिल कर सकते हैं बेटा. 2 से 8 कैंसिल होता है 4 टाइम, 2 से 3 6 कैंसिल होता है 3 टाइम. तो आपके पास क्या बचता है, देखिए आई एम गोइंग टू रेज इट. चीजें आसान है ना, समझना है, समझेंगे तो आप आराम से कर लेंगे इसको. देखिए क्या है, अब हमारे पास क्या बचता है कैंसिल करने के बाद 3 into 3 over 4 into 4. 3 3s are 9 and 4 4s are 16. So now again the HCF of 9 and 16 is 1. So these are in the simplest format. Okay. Now fourth part of the question. Fourth part you are given 9 upon 5 multiply 3 upon 5. So when you are going to solve it, you have given 9 upon 5 into 3 upon 5. तो कैंसिल तो कुछ होता नहीं है बेटा, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ना 5 से 9 ना 5 से 3 कुछ कैंसिल नहीं होगा. तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो. 9 3 जा कितना है 27 एंड 5 5 जा 25. बात सही है. अब ये आपका क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज आपका न्यूमरेटर बड़ा है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं होने वाला है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ऑलरेडी है बिकॉज 27 और 25 का एचसीएफ 1 आता है. तो आप इसको क्या करो, इम्प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज कर लो. और जब आप इसे इम्प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज करोगे तो ये आपका बन रहा है 27 upon 25 है, ये बन जाएगा 25 बन जाएगा 25, 2 रिमाइंडर ओवर 25, 1 whole 2 upon 25. कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पार्ट नंबर 5. ठीक है, इसमें आपको दिया गया है. ओके, इन दिस वे यू कैन डू द अदर पार्ट्स. ठीक है बेटा, इन दिस वे यू कैन डू द अदर पार्ट्स. द नेक्स्ट पार्ट इज आल्सो ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. वो भी आपका मल्टीप्लिकेशन वाला है. और मल्टीप्लिकेशन का फंडा मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का फंडा कैसे है
कि आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू डू, ये आप कर ले, कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप लोगों से खुद से करें, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लीकेशन, सब कुछ मल्टीप्लाई वाला दिया हुआ है, और मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शंस की कैसे की जाती है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? मैं जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है ना उन्हीं में करवाऊंगा, जिससे कि आपको खुद भी करने को कुछ क्वेश्चंस मिल जाए। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए तो आप लोग क्या करेंगे, है ना, इससे कोई फायदा नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है आपको बताना है। फ्रैक्शंस आपको कंपेयर करनी है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यू है गिवन 2/7 ऑफ 3/4 एंड और 3/5 of 5/8, 3/5 of 5/8. You have asked which one is greater in these two. तो first of all let me find out the value of these two things. पहले मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। क्लियर? तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये आपको दिया हुआ है 2/7 of 3/4। जब इस ऑफ का मीन्स हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 2/7 मल्टीप्लाई 3/4। देखो 2 कैंसिल करेगा, 2 को 2 टाइम्स, सही बात है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे बचेगा 7 2 जा 14। तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है बेटा। ठीक, सेकेंड नंबर यू है गिवन 3/5 ऑफ 5/8। इसको आप सॉल्व करोगे, आपको पता है कि ऑफ मींस होता है मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। 5 से 5 कैंसिल कर दो, कुछ नहीं बचेगा ना, 1 और 1 बच जाएगा यहाँ पे। 3 1 जा 3 एंड 8 1 जा 8, 3/8 बच गया बेटा। अब आपको कंपेयर किन दोनों करना है, इन दोनों को। आपसे क्या पूछा था, कंपेयर 2/7 ऑफ 3/4। तो 2/7 ऑफ 3/4 की वैल्यू इतनी आ गई, 3/5 ऑफ 5/8 की वैल्यू इतनी आ गई। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। और आपको याद होगा मुझे कंपेयर करना है 3/4 और 3/8 को। One question of comparison we have done in the NCERT exercise 2.1 also. There I have explained you the concepts of comparison of the fractions. मैं बता दूं क्या होता है बेटा, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल we have these two fractions. So here you can see the denominators are same. अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। गॉट इट? और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम होते हैं, here we have same numerator, if we have the same numerator then the fraction having less denominator will be greater। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है। सो द सेम प्रोसेस, द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव हियर आल्सो। आप गौर से देखोगे तो ये आपको कंपेयर करना 3/4 और 3/8 को, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। इसमें न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं? तो आप बोलोगे कि 3/4 इज स्मॉलर देन 3/8, ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना जानते हैं। गॉट इट? So this is the first part of your question. Second part we are going to do. Second part में आपसे पूछा है 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7. So how we will solve it? मुझे इन दोनों कंपेयर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो द वैल्यू ऑफ दीज टू थिंग्स। जब मैं इन दोनों की वैल्यू जानने जाता हूं तो वो आता है 1/2 ऑफ 6/7 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आएगा 1/2 ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन 6/7। बेटा 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कैंसिल करते हैं, ध्यान देना। तो बचेगा 3/7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 1 1 जा, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 हो गया ना, 3 1 जा 3 एंड 7 1 जा 7। Second thing you have given 2/3 of 3/7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/7, 3 कैंसिल कर देगा, आएगा 2/7। मीन्स ये दोनों इनकी वैल्यूज हैं। आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो आप करोगे 3/7 और आप कंपेयर करना है 3/7 को 2/7 के साथ। तो मैंने भी क्या बताया कि इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर
बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? समझ रहे हैं कंपैरिजन कैसे किया था? कंपैरिजन के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, और सेम नहीं है तो आप एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर को सेम करोगे, फिर से डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। गॉट इट? इससे आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स कह रहा है Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. देखो एक बात सोचो, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 saplings ट्री लगाए गए। क्वेश्चन नंबर 5, अगर 4 sapling ट्री लगाए गए हैं और 2 के बीच की डिस्टेंस 3/4 है, तो ये 3/4 कितनी बार आया है? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं ना, वो देखते हैं सर डिस्टेंस 3/4 है 2 के बीच का, और 4 ट्रीज है, 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर रॉन्ग आ जाता है। यहाँ पर हमको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना? तो बेटा नंबर ऑफ ट्रीज है 4, नंबर ऑफ ट्रीज कितना है? 4। बट आप देखोगे तो 2 के बीच की डिस्टेंस के हिसाब से कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3। 1 डिस्टेंस आपको 3/4 दिया है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3। तो आपको क्या करना है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से नहीं करना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent trees. Distance between 2 adjacent trees is equals to 3/4 meter. So distance between 4 adjacent trees is equals to 3/4 multiplied by 3। Why we are multiplying by 3 बात समझ में आ रही है ना? 4 ट्री लिखा, उसके बावजूद भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 के बीच में 4 के बीच में एडजेसेंट डिस्टेंस होंगी 3 होंगी, तो 3 3 जा 9/4। नेक्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म चेंज कर देंगे तो 2 होल 1/4, 2 होल 1/4 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होना है इस क्वेश्चन के लिए। कोई दिक्कत? इसको आप कॉपी करें, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 whole 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? एक दिन में कह रहा है इतने घंटे पढ़ती है। एक दिन में कितने घंटे पढ़ रही है? 1 whole 3/4 hour। ठीक है, और टोटल कितने दिन ले रही है बेटा बुक को रीड करने के लिए? 6 डेज ले रही है। जब एक दिन में 1 whole 3/4 hour कंप्लीटली पढ़ाई कर रही है और 6 डेज टोटल ले रही है, हर दिन उतना ही पढ़ रही है, टोटल कितने आर लगा है? इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या क्या भाई 1 डे का आर आपको दिया गया है, 6 डे का आर पूछा है, तो 1 डे का दिया है, 6 डेज का पूछा है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बात समझ रहे? चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखेंगे? स्टडी आवर्स ऑफ ए डे। Study hours of a day is equals to 1 whole 3/4 hour, 1 whole 3/4 hour। ठीक है, so study hours of 6 days। So 1 days you are given, तो 6 days का पूछा तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम करेंगे 1 whole 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, इसकी मिक्स फ्रैक्शन है ना, चेंज कर देते हैं। 4 1 जा 4 एंड प्लस 3 7, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है बेटा, ये 6 कहाँ होगा? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो कितना बन जाएगा? 7 2 जा 21/2 1 जा 2।
इसको हम चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्मेट पे, तो ये कितना बन जाएगा 10 होल 1/2 आर इन द 6th फेज। कोई दिक्कत कि 6 दिन के अंदर उसने कितने घंटे लगाए पढ़ाई करने में, 10 होल 1/2 आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, देखो कैसे करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लें। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन दिस नंबर ऑफ 2 होल्स 3/4 लीटर। 1 लीटर में कितना जा रहा है 16 किलोमीटर, तो 2 होल 3/4 का पूछा है। अगेन सेम थिंग, 1 का दिया गया है, ज्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। सो डिस्टेंस covered in 2 whole 3/4 liter of petrol is equals to, हम क्या कर देंगे 16 इंटू 2 होल 3/4। तो बेटा एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, हम इसे चेंज कर लेते हैं। 4 2 जा 8 एंड प्लस 3 11/4। अब मुझे बताओ ये 4 16 कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स, एंड 4 हमारे पास क्या बच गया 4 इंटू 11। देखो यहाँ डिनोमिनेटर खत्म हो गया ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, इसलिए कैंसिल किया है, तो 4 11 जा 44 किलोमीटर। मीन्स इतने 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना चला जाएगा 44 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसे पहले से करते आए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, ओके, तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 7 8। लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू 10/30 हो जाए। आपसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा, देखो ए का फर्स्ट पार्ट ना, ए का फर्स्ट पार्ट है। आपसे कह रहा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 2/3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग गिव्स मी 10/3, गिव्स मी 10/3। तो हम क्या करेंगे बच्चे, मैंने मान लिया कि ये जो अलजेब्रा सबने पढ़ी है ना कि ये 2/3 है, इसकी जगह सपोज x है, ये जो सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसकी जगह क्या है x है। अगर मुझे अब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा 10/3 10/30 मल्टीप्लाई, इस चीज को इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3/2। क्या होता है जब इक्वल्स टू के इधर से उधर लेके जाते साइन चेंज होते हैं, तो ये अभी डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम 5 टाइम होगा, 2 से 5 टाइम कैंसिल किया और इसको कैंसिल किया, कितना आया 10 आया। कोई दिक्कत। अब हमारे पास क्या बच रहा है 5/10। अब 5/10 में तो कैंसिल होता है, 5 से कैंसिल होता है दोनों नंबर ना, 5 से 1 कैंसिल हो जाता है और 5 से 2 कैंसिल होता है कि नहीं होता है। तो क्या आ रहा है देखो x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या आने वाला है 1/2 आने वाला है। कोई दिक्कत। दूसरा बात कह रहा है आपसे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स। इसी का सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा था कि जो इस बॉक्स में नंबर आ रहा है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करो। तो मैंने देखा कि इस बॉक्स में जो नंबर आ रहा था 5/10 आ रहा था, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कर चुका हूं 1/2। इट मींस फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा मैं कर चुका हूं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। मैं बी वाले की बात कर रहा हूं, इसी के बी की बात कर रहा हूं। और देखो इसका बी वाला कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हियर वी आर डूइंग, ठीक है बेटा। फिर कैसे करेंगे इसको, कोई दिक्कत में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट एंड कन्वर्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म। बॉक्स में क्या आएगा ये आपको बताना, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सेम थिंग वी है, कैसे करते हैं। सेकंड पूरा मैं एक साथ कर दे रहा हूं। आपको दिया हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 24/75। ठीक बच्चे, कैसे होगा। हमने क्या मान लिया कि जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स की जगह पे सपोज x आ रहा था, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x,
तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 24/75। ये वाला उस साइड जाएगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा। ये समझ रहे कॉन्सेप्ट, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 में बताया गया आपको और 7th के अलजेब्रा में बताया जाएगा। तो हम 3 से 8 24 कैंसिल करेंगे 8 टाइम, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 15 टाइम। तो हमारे पास क्या होता है 8/15। ना 8/15 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 8/15 जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है, बिकॉज 8/15 को अगर आप एचसीएफ निकालोगे ना बेटा, 8 और 15 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। सो दैट्स योर आंसर ओनली, यही आपका आंसर है, बिकॉज सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही है। गॉट इट? सो दिस इज वी हैव डन टुडे NCERT exercise 2.3 of the class 7th. Got it? Go through the NCERT, go through this exercise again, solve it again and again and again, so that it become your habit. मैथ्स को तब तक करो जब तक वो आपकी हैबिट ना हो जाए। हैबिट होने का मतलब क्या है कि हम अपनी हैबिट्स को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जब हैबिट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब अगली बार उसे करते हैं ना, पता नहीं चलता कि हम कर रहे हैं, हम मजा आता है करने में। सो मेक इट योर हैबिट कि हम करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, जिससे कि आपको मैथ्स करने में मजा आएगा। गॉट इट? कीप अपडेटेड विद द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल टू बी अपडेटेड विद द चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियोज ऑफ द चैनल। गॉट इट? थैंक यू।